નવા વેરિયન્ટ ડેલ્ટા પ્લસ હોય કે લેમ્ટા હોય કે જે પણ કોઈ હોય, નવો અવતાર હોય, નવો સ્ટ્રેન હોય, તમે યોગ કરશો. અને અમે શરૂઆતમાં જ બતાવ્યું હતું, આ દૂધમાં હળદર નાખી લો. અને જેને બહુ જ ગરમ લાગતું હોય ને તો આ દૂધમાં હળદર અને બધું નાખીને ને પછી એને ઉકાળીને ઠંડુ કરીને પીવાનું. આમાં દૂધમાં હળદર, થોડું શિલાજીત, આ બધું નાખી દીધું, કોફી જેવું થઈ જાય આ. અને પછી એનર્જી એટલી આવે એમાં. અને અત્યારે તો પવન બહુ જ ભરી રહ્યું છે. અને આ ઉકાળો પણ ઠંડુ કરીને પીવાનું. અને જેને બહુ જ ગરમી થતી હોય, પાયસ ફિસર ફિસ્ટુલા જેવી પ્રોબ્લેમ હોય, તો પછી આ શ્વાસારી હોય કે ગળો હોય, આ શ્વાસારી છે, આ ગળો છે, આ બધું પછી જેને બહુ ગરમી થતી હોય ને પછી એને લવિંગ, મરી, જેઠી મધ, આદુ અને આ બધું હળદર, આ બધું આ નહીં નાખવાનું, ફક્ત ગળો અને તુલસી બસ આ જ લઈ લેવાનું. લીમડા નાખી શકો, એ તો ઠંડુ હોય છે. અને આ ઉકાળું પછી ઠંડુ કરીને પીવાનું. આ તો ઉકાળું થયું ઇમ્યુનિટી માટે. પણ આ કરીને જે ઘણા લોકોએ મટાડ્યું છે કોરોનાને, એ મારી સાથે અહીંયા બેસેલા છે. અને બધાએ એક તો તમે તો ગુજરાતથી આવ્યા છો? અમદાવાદ, ગુજરાતથી. આશીષ શર્મા મારું નામ છે. આશીષ શર્મા, ગુજરાતથી આવું છું, નવાવાડજથી. કપાલભાતી અનુલોમ વિલોમ ચાલુ રાખો. મને એક વર્ષ પહેલાં સુગર, બ્લડ પ્રેશર બંને હતું. પણ અત્યારે 1 વર્ષથી મેં કાચું ખાવાનું ચાલુ કરી લીધું. એટલે મારું બ્લડ પ્રેશર ને સુગર ધીમે ધીમે કંટ્રોલ થયું. મગર કોરોના આવ્યો એટલે મારું સુગર એક ડાયરેક્ટ કોરોનાની દવાથી હિસાબે 700 સુગર થઈ ગયું, સ્ટીરોઇડના હિસાબે. 700 સુગર? હા, 700 સુગર થઈ ગયું. પછી ડૉક્ટરે કીધું કે એડમિટ થવું પડશે. પણ મેં કીધું મારે એડમિટ નથી થવું. હું કોરોનિલ, અણુતેલ અને કપાલભાતી અને પ્રાણાયામ કર્યા ઘરે. અને અત્યારે એના પછી સુગર કંટ્રોલ થઈ ગયું. એ વખતે મારું એવરેજ સુગર 8 હતું, અત્યારે 5.40 થઈ ગયું સુગર. પણ મને ક્રિએટિનનો પ્રોબ્લેમ પહેલાં હતો થોડો, પણ પછી કોરોના પછી એકદમ વધી ગયો. અત્યારે 6.23 થઈ ગયું છે. એ પણ મટી. ઓકે સ્વામીજી. હા, 700 સુગર અને બીપી પણ થોડું હતું. હા, બ્લડ પ્રેશર પણ હતું મારે. અને વજન મારું 95 હતું, અત્યારે મારું વજન 72 થઈ ગયું. યોગથી સારું કર્યું. યોગ કરીને અને બધાએ नानी उम्र वाला, मोटी उम्र वाला, तू तो पहलवान है, तेरे को भी हो गया? मेरी बहन को 5 अप्रैल में कोविड हुआ, फिर मुझको 10 अप्रैल में सिम्टम आए, लेकिन मैं योग और कोरोलिन और ये तुलसी गिलोया ये पहले से लेता था, लेकिन मुझको सिम्टम आ गए, वो वापस चला गया, वो नहीं ये मेरी बहन जी भी ठीक हुई उससे, और ये भर्ती हो गया, लेकिन मैं इसके पास जाता भी रहा हॉस्पिटल में, लेकिन मुझे नहीं हुआ। और ये परिणाम आपकी दुआ से आपकी बच गई हो। हाँ, तो कितने लोगों की मौतें देखी, मैं भी वहाँ पास में था। हाँ? ये दवा और ये तो આ યોગ કરીને કેટલાય લોકોએ કપાલભાતી, અનુલોમ વિલોમ, ફક્ત ભસ્ત્રિકા, કપાલભાતી, અનુલોમ વિલોમ, ગળો અને તુલસી, फक्त आटलू ज कर्યું, એનાથી લોકો બચી ગયા. कितने लोग मरते देखे? स्वामी जी 2 डेथ तो रोज मेरे ही वार्ड में होती थी, और मेरा जो बेड था वो बिल्कुल गेट के पास था, तो मेरे आंखों के सामने ही जाते थे। और जब मैं 7 दिन में रिकवर हो गई थी बिल्कुल, और 3 दिन मैं एक्स्ट्रा रुकी वहाँ पे, और मैं मतलब वहाँ पे ऐसे बिल्कुल जैसे पैकेट बना देते हैं, ऐसे पैकेट जाते थे मेरे सामने से ही, और मुझे घबराहट भी हुई। लेकिन जो योग है और प्राणायाम है, मैं लेटी लेटी वही करती रहती थी, और स्वामी जी तो जो है उससे मुझे बहुत शक्ति मिली। और मैंने, बल्कि सब लोग यही कहते थे कि बच के आ गई, वहाँ से कोई बच के नहीं आ रहा था। और मुझे लगता भी था ऐसे ऐसे लोग थे जो रात में आए, और सुबह जब मैं देखती थी कि मेरे बराबर में बेड खाली है, तो इस तरह से इतनी डेथ हुई। और स्वामी जी, और ये भी लगा कि इंसान की कोई भी कीमत नहीं है, इस महामारी में भी लोगों ने इंसानियत ख़त्म है। मैं सरकारी हॉस्पिटल में थी, अगर 12 रुपये सरकार उस खाने के दे रही थी, तो 2 रुपये का खाना हमको मिलता था वहाँ पे। नर्सिस अच्छी थी, वो जो है दवाई वगैरह टाइम पे देती थी, बाकी व्यवस्था जो है ऐसी थी। लेकिन फिर भी आपकी कृपा से स्वामी जी। और हॉस्पिटल में तेरे को दवाई कैसे मिली? दवाई वहाँ पे स्वामी जी, सरकारी हॉस्पिटल था ना, तो वहाँ पे ये
वहाँ ये था कि आप अपने घर से मंगा लो खाने पीने का सामान भी। तो मैं 2 दिन तो मुझे ज़्यादा होश नहीं रही। तीसरे दिन मेरे भाई ने मुझे कोरोनिल और स्वासरी भेज दी थी, तो मैं उनको थोड़ा छुपा के ले लेती थी कि कभी कोई ये कहने लगे कि भाई आप ये क्यों ले रही हो, यहाँ पे तो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो स्वामी जी उससे मेरी पहले वो 2 दिन में ही कहने लगे थे कि हो सकता है कि अगर 2 दिन में रिकवरी नहीं हुई तो फिर और कहीं रेफ़र करना पड़ेगा। लेकिन 2 दिन बाद मेरी रिकवरी शुरू हो गई और मैं घबराई नहीं, बस मुझे डर नहीं लगा। मतलब इतनी मौतें देखने के बाद भी स्वामी जी वहाँ पे डर नहीं लगा। और फिर पोस्ट कोविड थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, नसें खिंचने लगी। कोविड के बाद मैं बैठ भी नहीं पाती थी और सांस बहुत फूलती थी, ये पसलियाँ सारी दुखती थी। लेकिन मैं घर आने के स्वामी जी, जिनको मेरे पड़ोस में कोरोना हुआ था, मेरी रिकवरी सबसे जल्दी हुई। जो घर में भी थे और मैं हॉस्पिटल रह के आई 10 दिन, मेरी रिकवरी उनसे जल्दी हुई। कर देने तो इसको जरूरत ही नहीं थी जाने की, डर के कि वह कहीं उलाना ना मिल जाए कि वह छोरी मार दी रहे। मेरे हस्बैंड को बहुत इससे हुआ था, मतलब टेस्ट तो नहीं कराएं क्योंकि सारा सिम्टम वही था। इनके दोस्त ही रोज कोविड का चेकअप करते थे, बोले कि सारा सिम्टम यही है, मत हॉस्पिटल मत आना, क्योंकि जानते हैं कि ये बहुत घबराते हैं और डायबिटीज़ भी 12-13 साल से है, बीपी भी है। और पिछले साल मतलब 2 बार इनका पैर फ्रैक्चर हो गया था। तो मतलब वीकनेस तो बहुत ज़्यादा नहीं, हम खाते रहे ना कोरोनिल स्वासारी, इनका सेवा करते थे, तो हम भी कोरोनिल से स्वासारी तेल सब नहीं डालते थे। लेकिन बाबा जी इनका है ना क्रिएटिनिन लेवल हमेशा पॉइंट में रहता था, इस बार 1.9 हो गया और वही प्रोटीन लॉस जो जा रहा है इसके लिए बहुत परेशान है बाबा जी। प्रोटीन लॉस भी होता है, क्रिएटिनिन बढ़ता है। मेरे को आईज में हो गया था, जैसे कोविड हुआ था अभी लास्ट मंथ हुआ था, तो उसके बाद पोस्ट कोविड में ये आईज रेड हो गई थी और ये लेफ्ट वाली आई और ये राइट वाले ईयर में। तो मैंने कुछ नहीं किया, बाहर निकलने नहीं देते थे, वो कहते छत पे जाके अपना, तो छत पे जाके 1-1 घंटा मैंने प्राणायाम किया, अभी भी कर रही हूँ। फिर क्या हाल है? तो अब आईज बिल्कुल ठीक है, कान भी ठीक है। कान और आंख बचा ली, नहीं तो गई थी कान और आंख। चुभन हो गई थी आँखों में, तो उनको पहले सौम्या डाला तो थोड़ा कम आराम हुआ, फिर दृष्टि ले आई, मैं दृष्टि डाली तो उनका 1-2 दिन में बिल्कुल ख़त्म हो गया। और मेरी मदर इन लॉ को कैंसर डिटेक्ट हुआ था जनवरी में, तो मैं उनके लिए आई थी दुबई से इंडिया, और अभी हम दोनों को साथ में कोरोनिल हुआ था अप्रैल में। तो मैंने कोरोना हो गया था, तो मैंने तो खाली कोरोनिल खाई, मेरे को वो दूसरी दवाइयाँ देते थे, मैं अपने बैग में छुपाती रहती थी। और उनका भी और अभी यहाँ आने से पहले मैंने कहा कहीं बैग में देख ना ले, तो मैंने सारी डस्टबिन में डाल के बाहर रख दिया। क्या नाम है? रीचा। तो इनकी माँ तो पक्की मतलब योग की और आयुर्वेद की प्रचारक है। मॉडल टाउन में सारे कुनबे को एक-एक करके यहाँ भेज दिए। कितने आ चुके तुम लोग यहाँ? पूरा परिवार आ चुका है गुरुजी हमारा। दूर दूर से भी रिश्तेदार अब तो आ रहे हैं हमें देख देख के कि हमें भी जाना है, हमें भी ठीक होना है गुरुजी के पास। और मैं खुद 17 साल से योगा कर रही हूँ गुरुजी। जब से मैं शादी होके आई हूँ तब से मेरी सासू माँ ने मुझे योग में डाल दिया था। सच में मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ा वरदान है। मेरी सासू माँ ने मुझे योग सिखाया। और मेरा थायराइड है गुरुजी, मैं 9 साल से दवाई ले रही थी। मेरे को हाइपोथायराइडिज्म है, तो 9 साल से दवाई ली थी, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे को 3 दिन में मैंने दवाई छोड़ दी है। उन्होंने बोला कि रोज़ उज्जैन प्राणायाम करो। कोरोना मुझे लास्ट ईयर हुआ था अक्टूबर में। मैंने कुछ नहीं किया, घर में रही सिर्फ, और मैंने सिर्फ और सिर्फ श्वासारी और कोरोनिल खाई और गिलोय का पानी किया, बस और कुछ नहीं किया। मैं 1 हफ्ता में मैं खड़ी हो गई थी बाहर, बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, छू के चला गया हमें कोरोना। ये है बड़ी बात। अब लोग मर रहे हैं, लाखों लोग मर चुके हैं। एक गोली मत मारना बाबा आपके लिए तो मेरे को देखो बाबा 9 बीमारियां थी, आज मेरे को एक ये भी बोल रहे नहीं मैं गोली मार दूंगी। हाँ बिल्कुल मार दूं बाबा के लिए, तो उनको जो बाबा का वो को जेल में डाल देंगे, मैं मुझे कोई परवाह नहीं है, देश तो सुधर जाएगा ना। मुझे कोई टेंशन नहीं। प्रचार कर लेना। वैसे तो मैं करूंगी। मैं फायर ब्रिगेड से आई मोती नगर से, और हमें फायर ब्रिगेड, हाँ जी उस वहाँ से आई। मेरे हस्बैंड फायर ब्रिगेड में है। वे बीमारी, हाँ जी, तो यही बीमारी लाए थे हमें कोरोना की।
क्योंकि फार पे जाते हम तो घर पे रहते थे, यही लेके आए थे। आप फार पे जाते तो आप ही तो लेके आए, हम तो घर में रहते थे। इन्होंने कहा गोली खाओ, मैं कह रही ना हॉस्पिटल जाऊंगी ना गोली खाऊंगी। हमने एक बार गोली खाई, इन्होंने मेरी बहू ने हमें गिलोय से ही ठीक कर दिया था, मेरे पोते को भी। और एक बेटा मेरे एम्स में है, उसको नहीं हुआ, वो भी हमारे साथ था। पता नहीं झूठ था क्या, हमें तो लगना नहीं, हमें हुआ नहीं, क्योंकि हम योगा करते हैं और गिलोय पीते हैं। हमारे फायर ब्रिगेड में बहुत बड़ी बेल लगा रखी है हमने, और सबको भेजूंगी फायर ब्रिगेड वालों को। उनके फोन भी आए शर्मा जी के पास, और आप तो वहाँ जा रहे हैं, हमें क्यों नहीं लग गए। फायर ब्रिगेड वाले भी अब आएंगे, बहुत जिद्दी लोग थे लेकिन अब आएंगे। एक का फोन आप परिमजीत का इनके पास, क्या साहब हमको नहीं ले गए, कह रहे ठीक है हम ठीक होया, पहले हम खुद का एग्जाम्पल करेंगे तब तुम्हें बुलाएंगे। हम पक्का है, मेरी 9 बीमारी बिल्कुल गायब, देखो सारी आप मेरे को अब देखो बीपी था, लिख के रखी, भूल ना जाऊं। हाँ भूल ना जाऊं। बीपी लो, ये ठीक हो गया। अच्छा जी, मेरे को एलर्जी थी, बाल झड़ना, वजन और आंखें वीक और कब्ज और भूल जाती थी चीज़ें, बॉडी पेन और नींद नहीं आती थी, सारी छूमंतर हो गई। मैं बिल्कुल एकदम। इसके तो लो बीपी ठीक हुआ, और वो फायर ग्रेड वाले पति को जो है वो हाई बीपी ठीक हो गया। तो ये माने लो बीपी, हाई बीपी, बीबी, हस्बैंड सब ठीक हो रहे हैं। बाबा जी जब कोरोना हुआ था तो 105 फीवर था मुझे। मतलब 8 से 10 दिन रहा, और वीकनेस बहुत ज़्यादा रही, मतलब अराउंड 2-3 kg कम हो गया, मतलब 3-4 दिन में ही। तो उसके बाद इन्होंने बताया कि ये करो, क्योंकि आइडिया नहीं था मुझे, तो सारा योगा का सारा आसन वगैरह बताया इन्होंने, तो फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने सारा किया, तो फिर धीरे धीरे वो सही हो गया। और फिर 18 को एंगेजमेंट भी है, तो मैं डर रहा था पता नहीं एंगेजमेंट होगी कि नहीं। ये 18 आने वाला, क्योंकि लास्ट शादी होनी है। हाँ सर, एंगेजमेंट है सर। ये तो शादी से पहले ऊपर जाने के वही इनको स्पेशली लेकर आया, मैंने कहा चलो एंगेजमेंट से पहले कर लो। ये ठीक किया जी जी। तो जिनका भी ब्याह हो रहा हो भाई पहले आ जाइए, तो ठीक ठाक करके भेज देंगे। आपसे बहुत उम्मीद जगी है स्वामी जी, सभी लोग। बिल्कुल। कुछ दादा बाबा जी कुछ कह रहे हैं, चलो आगे झुको, सूर्य नमस्कार करो। मैं हीरालाल पालीवाल मुंबई से हूँ मैं जी। मुझे कोरोना हुआ था अक्टूबर में, तो 2-3 दिन तक मेरे को ये ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, तो बच्चे लोग ने डॉक्टर वगैरह को बताया, तो उसमें मुझे सिम्टम आया, तो बच्चे लोगों ने बोला कि एडमिट कर देते हैं। तो मैं बोला कि अपना ये वैसे मैं हमेशा योगा और ये दवाई वगैरह लेता हूँ, गिलोय लेता हूँ डेली, अपना ये वाला जो हमेशा प्रोग्राम ये करता हूँ मैं, तो एक्सरसाइज वगैरह और सब ये करता हूँ, योगा प्राणायाम सब करता हूँ मैं। तो उसके बाद में मैंने ये अदरक और ये तुलसी का और ये काढ़ा चालू किया। मैं बोला 2-3 दिन में अच्छा नहीं होएगा, तो उसके बाद में अपन एडमिट होंगे। तो उसके बाद में मैंने ये चालू किया लेना, तो एक स्वाश्री और गिलोय और ये सरसों का तेल मैंने डाला नाक में, तो 3-4 दिन के यदि मुझे फर्क नहीं पड़ेगा तो उसके बाद में अपन एडमिट होंगे। तो उसके बाद में मुझे 3-4 दिन में मैंने ये ट्रायल किया पूरा, तो मुझे अच्छा हो गया। तो उसके बाद हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। कुछ भी हो, एक बात व्यक्ति को ध्यान में रखनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी योग को दो, आयुर्वेद को दो, नेचुरोपैथी को दो, घरेलू चीजें, होम रेमेडी। तो हम पता नहीं कहाँ किस चक्कर में अपने इतनी बड़ी विरासत को भूल गए। क्या कह रहा था? मुझे हमेशा एलर्जी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती थी, मतलब खांसी, एलर्जी आ जाने से खांसी हो जाना या सीने में जकड़न जैसा फील हो जाना, तो ये एलर्जी की प्रॉब्लम मेरी बार बार मेंटेन होती थी, जैसे सीजन चेंज होता था या बीच में भी। तो मुझे श्वास भर के करो। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया वहाँ पे, तो उन्होंने फिर मुझे 2-3 साल में एक हिटलास टाइम एक टैबलेट आती है एंटी एलर्जी, वो मुझे वो देते थे। तो वो एक रूटीन हैबिट बन गई थी कि मतलब वो जब खाता था तभी जाके मुझे रिलीफ होता था, फिर जब सीजन ठीक हो जाता फिर नॉर्मल हो जाता था। लेकिन जब से मैं सोसरी ले रहा हूँ, मुझे कोई पिछले 1 साल से कोई एंटी एलर्जी टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल जब भी कुछ कभी खांसी होती है मैं बस सोसरी ले लेता हूँ, वो अपने आप, फिर उसके बाद कुछ नहीं पता चलता है कहाँ गई खांसी और कहाँ गया कुछ। तो बिल्कुल अब नॉर्मल हूँ, काफ़ी हम मैराथन वगैरह भी दौड़ता हूँ, सब कुछ बढ़िया होता है, कुछ दिक्कत नहीं है अभी। एक जमात खड़ी हो गई है कि भाई एलोपैथी की जरूरत ही नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो करो बेटा, ये वृक्षासन करो। वात, पित्त, कफ। कफ की प्रकृति के लिए चलो तीनों चीज़ों का उपाय भी बता दो। घना बधा ने आ 3 जातनी प्रॉब्लम થાય છે। વાતની પ્રોબ્લેમ હોય તો હળદર, મેથી, સौंठ, સુરંજાન, અશ્વગંધા, એલોવેરા, ગળો, હાર શ્રૃંગાર, લસણ, એ બધું અમે બતાવીએ છીએ। આ તો વાત માટે। પિત્ત માટે
એલોવેરા ગળો અને દૂધીનો જ્યુસ અમે દરરોજ તમને બતાવીએ છીએ. કફ માટે આ શ્વાસારી ક્વાથ, શ્વાસારી પ્રવાહી, શ્વાસારી વટી એ રામબાણ છે. અને આટલું બધું સંતુલન હોવું જોઈએ કે ધીમે ધીમે અભ્યાસ કરતા કરતા તમે ગરુડાસન પણ કરી શકો. કફ કોલ્ડ માટે શ્વાસારી વટી, શ્વાસારી ગોલ્ડ, દૂધમાં હળદર શિલાજીત, અને આ બધું કરી લે તો ચલો બેસી જાઓ. બેસીને વજ્રાસનમાં 3 પ્રોબ્લેમ્સ બહુ કષ્ટ આપે કોરોનાવાળા પેશન્ટ. જેને ડાયાબિટીસ હોય, જેને પાચન તંત્ર નબળું હોય, એને ડાયાબિટીસનો તરત અસર થાય. તમારું ડાયજેશન સારું હોય, તમારી ઇમ્યુનિટી સારું હોય, ઇમ્યુનિટી સારી હોય, ડાયજેશન સારું હોય, તમારા પેટ, પેન્ક્રિયાઝ, રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ, હાર્ટ, સર્ક્યુલેટરી સિસ્ટમ સારું છે, તમને બીપી ના હોય, સુગર ના હોય, કોલેસ્ટ્રોલ વધેલું ના હોય, તમારા ફેફસા મજબૂત હોય, તો તમને શું કરશે આ કોરોના? આ મંડુકાસન આવી રીતે અને આવી રીતે કરવું તો પડે. અને જેનાથી થાય એ યોગ મુદ્રાસન, અને જેનાથી નહીં થાય તો વક્રાસન કરી લેવાનું. ફક્ત 5 થી 10 આસનો અમે દરરોજ બતાવીએ છીએ કે એક આસન 2 મિનિટથી શરૂ કરીને થોડી જમીન ઉપર, માથા જમીન ઉપર. જેનાથી યોગ મુદ્રા નહીં થાય એ બધા વક્રાસન કરી લે છે. જેનું શરીર ફ્લેક્સિબલ હોય તો એ તો અર્ધમત સેન્દ્રાસન આમ કરી લે. જેનાથી આ નહીં થાય તો વક્રાસન તો થાય જ છે બધા. આ જ કરી લેવાનું. વક્રાસન, ગોમુખાસન, પવન મુક્તાસન, ઉત્તાન પાદાસન, નૌકાસન, સેતુ બંધાસન, પાદાંગુષ્ઠ, નાસાસ્પર્શાસન, સર્વાંગાસન, હલાસન. આ યોગનો એક અભ્યાસક્રમ છે 15 અભ્યાસનો. એમાંથી 5 થી 10 થઈ જાય તોય જ આપણે બધા રોગોને પરાજિત કરી શકીએ. એવી યોગ વિદ્યા, એવું આયુર્વેદનું જ્ઞાન, છતાંય અમે રોગોથી પીડિત છીએ. તો આ તો બહુ અવિવેકની વાત છે. એક બાજુથી, બીજી બાજુથી જેટલું થાય એટલું કરી લે. નાના બાળકોને પણ લોકો આમ કે આજે નવી લહેર આવશે, એમાં બાળકોને બહુ ખતરો થાય. એને સૂર્ય નમસ્કાર કરાવજો. શીર્ષાસન, સર્વાંગાસન, હલાસન, ચક્રાસન, પશ્ચિમોત્તાનાસન અમે તો દરરોજ બાળકો માટે બતાવીએ છીએ. એક અભ્યાસને 1-2 મિનિટથી માંડીને 10 મિનિટ સુધી કરવાનો છે. એક બાજુથી, બીજી બાજુથી. અને પછી પવન મુક્તાસન, ઉત્તાન પાદાસન, નૌકાસન, સેતુ બંધાસન, પાદાંગુષ્ઠ, નાસા સ્પર્શાસન, સર્વાંગાસન, હલાસન, ચક્રાસન. એ તો બધાને જ કરવાનું છે. જેનાથી જેટલું થાય એટલું કપાલભાતી સાથે
કપાલભાતિ, અનુલોમ વિલોમ, ભ્રામરી અને ઉદ્ગીત એ તો કોક દિવસે પણ છોડવાનું છે. ભ્રામરી પછી ઉદ્ગીતો